خوش ہیں اس میں یا کچھ ریگریٹس رہ گئے ہیں اس میں کہ نہیں پرسنل زندگی میں نہیں عائشہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ اسکرین پہ خوش نظر آتے ہیں لیکن خوش نظر آتے ہیں, ہر ایک کے لیے ہر دل عزیز ہوتے ہیں, لیکن ان کی پرسنل لائف کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا میں یہ وہی والی بات مارننگ شو والی آ گئی کہ گلا آج ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن ویورز میری آواز سے بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں. اچھا جی ایسے سعدیہ کہ میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا شکر ہوں, آئی ایم ایکچولی اے ویری ہیپی پرسن. اور آئی تھنک یہ مجھے ایک یہ جو انہیریٹ کیا ہے میں نے اپنی امی سے, ٹھیک ہے, کچھ ہو جائے وہ بہت خوش رہتی ہیں. مجھ سے یہ یاسمین طاہر صاحبہ جو ہیں وہ مجھے پوچھتی ہیں بھئی تم ہر وقت اتنی وائبرنٹ, اتنی ایگزوبرنٹ, اتنی خوش کیسے رہتی ہو, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں لیکن میں ان مسئلے مسائل میں سے سیل تھرو کر جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں انسان کو ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ طاقت بھی دیتے ہیں, آپ کو وہ ہمت بھی دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے گزر جائیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی اب پانی بھی نہیں پی سکتے روزے میں, ہاں تو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو بھی ہائیز لوز اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور اون ایکشنز. آپ نے غلط کیا یا آپ نے صحیح کیا یہ اب آپ پہ ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں تو مانتی ہوں بھائی کہ میں تو بہت بڑی بے وقوف ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ میری چوائس ہے, ٹھیک ہے. مجھ سے کوئی بلٹ پوائنٹ پہ کچھ نہیں کرا رہا. میں ان ویک لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو کہیں ہائے ہم بیچارے تو ہمارے کو اس نے یہ کر دیا, تو ہمارے ساتھ اس نے وہ کر دیا, اس نے ہم سے یہ زبردستی کرا لیا, تو وہ کر لیا, تو یہ کر لیا. ہاں, اور ریگریٹس اللہ کا شکر ہے مجھے ایک ریگریٹ نہیں ہے. اور آج کل تو میں ویسے ہی ماشاء اللہ سے آئی ایم ویری ہیپی بیکاز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ سے, ہی از ٹرننگ 18, آہد جو میرا بیٹا ہے. اور یو نو آئی کوڈ نیور ایور تھنک کہ میرے ساتھ ایک یہ میریکل ہوگا میری پرسنل لائف میں. یہ میں ویورز کے ساتھ کر رہی ہوں پہلی دفعہ کہ مطلب میرا اب ایک ماشاء اللہ 8 مہینے کا میرا ایک اور بیٹا ہے, محمد مصطفیٰ مرزا میرے بیٹے کا نام ہے. اینڈ یو نو آئی ایم جسٹ انجوائنگ مدرہڈ سو مچ, کیونکہ آپ جب 21 کے ہوتے ہیں آپ کو پڑی ہوتی ہے یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, اور پھر آپ جب 39 کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کافی کچھ کر چکے ہو, تب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بس اب میں بچے کو انجوائے کروں, مجھے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا اتنا کوئی شوق نہیں. کیا سب کچھ کر لیا یا کچھ باقی بھی رہے؟ خواہشیں پوری ہو؟ نہیں, ابھی بڑا کچھ باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے, سب کچھ نہیں کر لیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے, اور جو کرنے کا دل تھا, جو کرنے کے پلانز تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بہت اچھی طرح سے کرنے کا. اور ویسے میں نے کوئی اتنی پلاننگ بھی نہیں کی, بس خود ہی سے ہوتا رہا سب کچھ. صحیح, خود ہی سے ہوتا رہا. اور گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کوالٹیز اور کچھ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ایسا ہی عائشہ ثنا کے ساتھ ہے. خیر ہماری گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, لیکن اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان میں, ظہر کی اذان کا, تو اس کے لیے ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے. پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستان جتنے بھی ہیں ہم ان کو اسپیشلی متوجہ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی بھی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں, خاص طور پہ ایسے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں ان کا, تو ان کا سوچ کے ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا سنا مجھے یہ بتاؤ بیٹا آپ یہاں کب آ رہی ہو, ادھر کا ڈی ایل پی کا پروگرام کوئی کر رہی ہو؟ سب پروگرام بنا کے پھر انشاءاللہ پروگرام آپ کو بتاتے ہیں. آپ کی درخواست کرنی پڑے گی. جی ہم درخواست کر دیں گے ڈاکٹر صاحب سے, ہمارے چینل کی آنر ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ ہائی کر لیں. مسز خان آپ چاہتی ہیں کہ میں اور سعدیہ ہماری کسی ہم چھوڑ دیں؟ ہمیں چاہتی ہیں آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ سیلو بھی ہو جائیں گے تو بہت اچھی لگے گی. چلے جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مہمان کوئی نہیں آئے گا. تھینک یو سو مچ مسز خان. کیا میں اور لوگوں کو بھی موقع دیتی ہوں آپ بات کرو, لیکن میں یہ کہوں گی آپ نا کیا آشا اب بہت دعا کرے, ہمارے حالات جو ہیں پاکستان کے وہ خدا کی کرے, اور استغفار کرنے کی بہت بالکل اس وقت بہت بڑا امتحان ہے, اور سوچ نہیں رہا کوئی بھی کہ کیوں امتحان ہم پہ آئے, بالکل کیا وجہ ہے, کون سی تکلیفیں ہیں. ہر لڑکی کہنے کے ساتھ تکلیفیں آتی ہیں, وہ نہ سمجھنے والے لوگوں کو پہ زیادہ آتی ہیں, اور سمجھ جانے والوں کو خدا ہدایت دے دیتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے, تو خدا اس وطن کو, اس ملک کو, دنیا کو بچا دیتا ہے.
بالکل दुआ में याद रखिए. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. ये तो मैं आपका काम कर रही हूँ. हाँ, यही बहुत तो मैं शुक्रिया सोच आपकी रही कॉल थी का. कि आज मैं शो- नहीं भाई. हमारे साथ ना दूसरी दफा ऐसा हो रहा है. एक दफा मैंने शादी से हमने कहा था उठा शादी उठा हम वहाँ बैठते हैं और वहाँ हमारे गेस्ट को हम यहाँ बिठा वो देते कौन हैं. थी? सॉरी वो कौन? हमारे पास डॉली आई थी. डॉली. अच्छा. हाँ, शी वाज अ ब्यूटिशियन. तो वो ब्यूटिशियन थी. अच्छा आयशा, अगर हम आप पर्सनल लाइफ को कुछ डिस्कस कर लेते हैं. हम चाहते होते हैं कि हम हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाने. हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें कॉल करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी क्या है. चल रहा है वहाँ? तो आयशा, मतलब शादी हो गई है आपकी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी शादी हुई होगी क्योंकि आप लगती नहीं है. लो लो जरा क्या? है? अच्छा अच्छा. नहीं, कसम से आपकी फिटनेस माशाल्लाह, आप कोई देख ही नहीं कह सकता कि अभी आप. अल्लाह करे कोई फिटनेस आ रही हो स्क्रीन पे भी. प्लीज कैमरामैन से मेरी बहुत इल्तिजा है कि जरा लेंस चेंज कर लें. अच्छा नहीं जी अच्छा. सादिया, आप पूछें जरूर. हाँ, मैं पूछना चाहूंगी, शादी हो चुकी है आपकी? जी बिल्कुल, मेरी शादी हो चुकी हुई है. शादी मेरी हुई थी 21 जून 2003 को. अच्छा. ठीक है, मेरी दूसरी शादी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, आहद तारिक ख्वाजा मेरे बेटे का नाम है. इंशाल्लाह ताला कल मेरा बेटा 18 इयर्स का हो जाएगा. और जी, और पैदा भी मेरा बेटा लंदन में ही हुआ था बाय चांस, क्योंकि उस वक्त हम लोग लंदन में रह रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा सिलसिला था. तो एनीवे वो शादी खत्म हो गई. और बाद ये मेरी शादी हुई 21 जून 2003 को. अच्छा. ठीक है, और वो शादी भी अब बिल्कुल खत्म होने वाली है, बल्कि जी बिल्कुल खत्म होने वाली है. और 8 अगस्त को वो शादी, आई थिंक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा. तो इस हवाले से भी कुछ मिसकंसेप्शंस थी कि जैसे जी मेरी जो तलाक है वो कोई पता नहीं 5 साल पहले हो चुकी हुई है, कुछ ऐसा भी था. अब ये देखें, ये बड़ी लंबी कहानियां हैं. और जो चाहने वाले होते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको सब पता है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं छुपाया. माई लाइफ इज एन ओपन बुक. और बल्कि ये मिसकंसेप्शंस है, और आपको पता है ना, परसेप्शंस रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है. बिल्कुल. इल्यूजन्स बन जाती हैं, उनको बनाने वाले बहुत बड़े प्लानर्स होते हैं. ठीक है, ये सब कुछ बन जाता है. तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फैन हैं, उनको है इन सारी बातों का. और मैं बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर www.yusufbegmirza.com पे जाएं, ये एक वेबसाइट है जो मैंने लॉन्च की है अभी कुछ दिनों पहले, तो उनको सारी कहानी पता चल जाएगी. और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसपे माशाल्लाह से मतलब 120 मीडिया के लोग आए हैं. ठीक है, और अगर आप लोग YouTube पे जाएं और आप लोग टाइप करें आयशा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे. आप लोग प्लीज वो देखें. बिल्कुल. तो इसलिए वो कैसा सारी बातें रिस्पांस खुल कैसा गई था हैं. आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? भाई क्या है आपके स्टूडियो में, मेरा गला खराब हो रहा है. अच्छा सॉरी, ये इस तरह की तो हमारी चलती रहेगी नोक झोंक बीच में. रिस्पॉन्स ऐसा था शामा कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक मीडिया कैंपेन जो है ना, वो पहले से 1 हफ्ता पहले से शुरू हो गई थी. जब पता चला ना मिर्जा साहब को कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, उन्होंने अपने तमाम हथकंडे, अपना तमाम इन्फ्लुएंस, अपना तमाम वो दबदबा, अपना जोर, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, सब चीजों को ना मतलब हरकत में डाल दिया. हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है भाई, बरूए कार, बड़ी अच्छी उर्दू भाई शाज़मा की. एनीवे जी, उसके बाद एक चैनल पर पहले से ही मेरे खिलाफ खबरें आनी शुरू हो गई कि जी बढ़ती उम्र है तो डिप्रेशन का शिकार है, तो काम नहीं मिल रहा है. ठीक है, जैसे मैं पता नहीं कोई साइको हो गई हूँ. हाँ, जैसे मैं कोई साइको हो गई हूँ. तो मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी लोग आए तो वो सोचें कि ये बुड्ढी माई जो है क्या बोल रही है, यू नो, ऐसा कुछ इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई. अच्छा जी, सब लोग आए, सब लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया. एक एक डॉक्यूमेंट जो मेरे निकाह नामे, मेरे तलाक नामे, मेरे बेटे का डीएनए सर्टिफिकेट, डीएनए टेस्ट भी करवा लिया. जी बिल्कुल, डीएनए टेस्ट, सारा उसके रिजल्ट्स, सारे उसके बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट. फिर ये जो मिर्जा साहब हैं, इनकी जो पहले जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, जिनको उन्होंने तलाक दी हुई थी मुझसे शादी करने से पहले, और मेरे निकाहनामे में नहीं लिखा हुआ है कि उनकी कोई वाइफ नहीं है. साथ सारा उनका जो तलाक का एक पूरा प्रोसेस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो लोग तो देखे ना मियां बीवी बन के रह रहे हैं ना सोसाइटी में. अच्छा, वैसे उनकी तलाक हुई थी और ये तलाकनामा जो है वो बाकायदा है
جی उनकी तलाक हुई, इसके बावजूद वो कैसे दोबारा रजू कर सकते हैं? बिल्कुल, उनकी तलाक हुई 10 मार्च 2003 को। मैंने आपको बताया कि मेरी शादी हुई 21 जून 2000 के बाद, ठीक है। अच्छा, अब जी उसके बाद वो किसी जाली फतवे के तहत या बस सोसाइटी को एक बेवकूफ बना के कि नहीं जी हम तो बस बच्चों की खातिर रह रहे हैं और पता नहीं इस मसलहत के तहत और उस मसलहत के तहत, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की सिविलाइज्ड डिवोर्सेज हों, लोग बच्चों की खातिर मिलते रहें, बच्चों की शादियों में इकट्ठे बैठें, बच्चों की ग्रेजुएशन में इकट्ठे जाएं, लेकिन आप ये पोज ना करें कि आप मियाँ बीवी हैं। ये एक चीटिंग है बिल्कुल कि जी आप अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस पोज कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि जिनका सबको पता है कि भाई इनकी तलाक हुई हुई है, लेकिन वो लोग मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, लेकिन सब लोगों को मालूम होती है, ठीक है। सो ये सब कुछ मैंने जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सादिया, शाज़मा, ये मैंने व्यूअर्स, ये मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए ओरिजिनल, उनको सारे उस पे स्क्रीन पे भी, मल्टीमीडिया पे भी उनको सब कुछ दिखाया गया, उनको साथ सेट दिया गया ऑफ 40 डॉक्यूमेंट्स, यू नो कि ये असलियत है, ये हकायक है। पता नहीं जी मैंने कौन सी एंटी स्टेट बातें कर दी या कौन सी अल्लाह माफ करें एंटी इस्लाम बातें कर दी, या मैंने कौन से ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बारे में जैसे मैंने बात कर दी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग ही नहीं की गई, एक भी खबर नहीं प्रिंट हुई। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं जंग ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आशिक चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी खबर दी वर्ड बाय वर्ड, जैसे मेरी प्रेस रिलीज थी। शकील जाहिद साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शकील जाहिद साहब नई बात से, उन्होंने मेरी खबर दी। एक दो और पेपर्स हैं उन्होंने दी, पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने मेरी खबर दी, और मीडिया में एक्सप्रेस ने मेरा बहुत साथ दिया, और फिर ये कहानी बना दी गई कि एक्सप्रेस ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया। आप ये देखें कि ना जान ना पहचान ना कुछ, अगर कोई आ रहा है और हक का साथ दे रहा है और आके जो एक फर्ज होता है कि जी रिपोर्ट किया जाए, जो कुछ भी है रिपोर्ट किया जाए, और फिर लोग उस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करें कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो वो उन्होंने, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है तो वो जैसे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बिल्कुल आयशा, आपसे आपके इशू पे बात होगी, हमारे एक लाइव कॉलर है देर से वो तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कमिंग बैक टू योर इशू जी, मतलब आप ये देखें कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी रिपोर्ट ही नहीं किया गया, कवर ही नहीं किया गया, और मुझे फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और खैर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब यूट्यूब पे और उसको जितनी और साइट्स ने उठाया, और जो उस पर मुझे रिस्पॉन्स मिली है, ठीक है, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, बुरे कमेंट्स भी होते हैं। मैं ये नहीं करूंगी कि जी मैं को बेचारी बनने की कोशिश करूं और कोई बुरे कमेंट्स जो हैं उनको मैं को ब्लॉक करा दूं। हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, यू हैव अ राइट टू योर ओपिनियन। लेकिन आप देखें, मेरी ये सबसे गुजारिश है, मेरी सबसे अपील है कि आप हक का साथ दें। बिल्कुल प्लीज आप लोग, जो मेरी सारे बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं, बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं, अगेन मैं उनका नाम लेना शुरू करूंगी तो कहां से कहां बात चली जाएगी। प्लीज मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग इसको खुद एनालाइज करें, खुद आप देखें कि इशू क्या है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर ये कह रही हूँ कि मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा 8 महीने का है, वो बच्चा अपने लिए तो नहीं बोल सकता ना, आई हैव टू स्टैंड अप फॉर हिज राइट्स। और जो ये मिर्जा साहब की फैमिली है, आप लोग अगर वेबसाइट पे देखें जो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक्स किए हैं, भाई आप अपने बंदे पे अटैक करें, ठीक है। और आप लोग एक बच्चे को बाप की शफकत से महरूम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने एंगल्स और अपने एजेंडाज और अपने मोटिव्स की वजह से, ठीक है, जबकि आप खुद गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और खुद आपका क्या कैरेक्टर और क्या सब कुछ है, आप मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, साथ मेरे बच्चे पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप लोग तो खुद अपने सर बहुत सा गुनाह ले रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ शमीम है आयशा, अच्छा, बर्मिंघम से। ओह अच्छा, बर्मिंघम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हैं आप? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है। ओए होए, ये कैसा सायरन बजा, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये मुझे फिर वही याद आ जाता है ना, जब मैं भी कहती हेलो हेलो जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। और कभी जब ये ओवरसीज कॉल आ रही होती थी तो बहुत होता था कि भाई
बात कर लें इंटरनेशनल कॉलर्स से। इंटरनेशनल कॉलर, और हमारे पास तो माशाल्लाह इतनी कॉल्स आती हैं मैनचेस्टर सवेरे की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा आयशा, जहाँ तक हम बात करेंगे आपने एंकरिंग की, इसके अलावा बहुत लिंक्स आपने भी बनाए होंगे, अगर यूसुफ बेग मिर्जा साहब के लिंक्स थे, आपके भी लिंक्स होंगे। क्या किसी ने कोई काम नहीं किया, क्या किसी ने कोई साथ नहीं दिया? मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन एक कॉल ले लूँ। मैं गुरबचन है हमारे साथ मैनचेस्टर से। गुरबचन, गुरबचन, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम गुरबचन, कैसे हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कोई नहीं, बड़ी टफ लाइफ निकली है। जब टफ लाइफ आवे ना ते रब इम्तिहान लांदा ते बंदा कोई सक्सेसफुल होके बड़ा कामयाब होता है। जी देखो इन्होंने हौसला नहीं छड़िया, दिस इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। देखो मुसीबत आन जेड़ा फेस करके इधर मुझे तो एवं है कि ना सारे मैंने रियली बड़ा से मैं मैनचेस्टर से बोल रहा जिससे मैनचेस्टर वर्गे दिल वाले बंदे रहते बड़ा दिन बड़ी खुशी हुई है। तो बाकी सानू कदे भी तुहानू किसी चीज की लोड़ होवे, मदद होवे, आ मिले सारी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैनचेस्टर से वेरी हैप्पी टू नो दैट कि देखो इन्नी टफ साडे हिंदुस्तानी ना बंदे लेडी की इज्जत करके राजी ने गल्ला जरूर करेंगे, लेडी की इज्जत करने जो बाहर जाके गाल कड्डणगे ते मां ते भैन की गाल कड्डणगे। देखो तुसी इज्जत कादी कीती है लेडी की, जो तुसी गाल जाके बाहर होई करनी है। वन शुड रिस्पेक्ट। कोई एक लेडी से बजाती ना सारे खड़े हो जाते हैं, सामने कदम उच्चा नहीं बोलते, लेकिन साढ़े हिंदुस्तान या पाकिस्तान बस उन्होंने थले दबा के रखे है। तो मैं बड़ा खुशी हाँ कि इन्हें आप सिर कढ़िया एंड शी इज डूइंग वेरी वेल एंड वी विश all the best all the way all the time. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत कॉल करने का, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बड़ी खुशी हो रही है इन लोगों से बात करके। सादिया, आप जो बात कर रही थी ना, देखें आई एम अ वेरी फोर्थ कमिंग पर्सन। मैंने कभी किसी से इसलिए अपना मेल जोल रखा नहीं, मेल जोल नहीं बढ़ाया कि भी मैंने उसको कल को इस्तेमाल करना है, मुझे उससे क्या फायदा पहुंच सकता है। ठीक है, मैंने इसलिए कोई लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स, पीआर नहीं बनाई। मेरा ये है कि भाई सबसे अच्छी तरह मिलो, आप किसी को अच्छा इखलाक ही दे सकते हैं ना, और सबके पास सब कुछ है। ठीक है, प्लस आई एम एन इंडिविजुअल। आप देखें जो ये मिर्जा साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूट की पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनको विरासत में नहीं मिली है, ठीक है, इनकी इनहेरिटेंस नहीं है, इट इज अ स्टेट ओन चैनल। उसकी मशीनरी को, उसके रिसोर्सेज को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पर्सनल वॉर के लिए या अपने पर्सनल मकासद के लिए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आशा, सॉरी टू कट यू, शमीम हमारे साथ दोबारा वापस आ गए हैं। शमीम है जी बर्मिंघम से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, कैसे जा रहे हैं आप? कैसे जा रहे हैं? फिट। आप ठीक है शमीम? मैंने एक ही बात करनी थी, बस ठीक ठाक। अच्छा, आप रमजान का महीना चल रहा है ना, ये आप फैशन करके बैठे हैं ऐसी तरह, बच्ची बात तो नहीं है ना? तरह तरह के मर्द देख रहे हैं आपको। शमीम थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। शायद कोई लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे बात कर, हम लोग तो ठीक कपड़े नहीं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे जहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आप ये देखें कि पीटीवी के रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो मुझे डिवोर्स पेपर्स मिले 5 मई 2012 को, मुझे जो पहला डिवोर्स पेपर मिला, तो उसमें फखर हमीद साहब जो कि पीटीवी के डायरेक्टर आईटी हैं या कुछ इस किस्म का ओहदा है उनका वो गवाह बने हुए थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब कोई फैमिली मेंबर, एक फैमिली मैटर में कोई फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार या कोई वो गवाह नहीं, पीटीवी के लोग गवाह बने हुए तलाकनामे में। ठीक है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आगे क्या कुछ जो है किस तरह से किया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने जो देखी, डिसोन कर रहे हैं वो अपने ही बेटे को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जी जी। डिवोर्स भी दे रहे हैं, क्या जिस ले रहे हैं बेटे की बड़ी चाहत की है उन्होंने। अगर आप तमाम उनके मैसेजेस पढ़ें प्लीज, मेरी अगेन गुजारिश है ये जो लोग देख रहे हैं कि अगर आप www.yusufbegmirza.com पे जाएं तो आपको तमाम माजरा जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ उन्होंने डिवोर्स देके ये साबित कर दिया कि आपके साथ उनकी शादी रही है टिल दैट डेट,
اور اس کے باوجود وہ ڈس آن کیسے کر رہے ہیں آپ نے؟ بس جی وہ اس طرح سے ڈس آن کر رہے ہیں کہ ان کی جو یہ سو کالڈ بیگم ہے جمیلہ مقصود اور ان کی جو بیٹی ہے ثنا بیگ مرزا، انہوں نے یہ ٹھان لی ہے، انہوں نے یہ مشن بنا لیا اپنا زندگی میں کہ جی ہم نے اس بچے کو پٹرنل اکنالجمنٹ نہیں ملنے دیں۔ آپ یہ دیکھیں نا سعدیہ، اگر وہ مجھے اون کرتے ہیں، بچے کو اون کرتے ہیں، تو یہ جو وہ پچھلا ایک فیک فساد بنا کے رہے ہیں اتنا عرصہ، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ صحیح، ٹھیک، سو بس وہ ایک چیز ان کو سوٹ کرتی ہے، اس پرسیپشن کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو آپ پرسنلی ڈیمیج کریں، ساتھ آپ اس کو پروفیشنلی ڈیمیج کریں، اپنی پاور، اپنا انفلوئنس یوز کر کے یہ لوگوں کو ہیوی کانٹریکٹس آفر کرنا، یہ ایڈورٹیزمنٹس کا بارٹر کرنا، یہ لوگوں کو بہت سبز باغ دکھانا کہ جی تم عائشہ کو ڈیمیج کرو، عائشہ کو میڈیا میں نہ آنے دو، اس کو کوئی پروگرام نہ مل جائے، یہ کوئی کام نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ مجھے پرسنلی اور پروفیشنلی دونوں طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ابھی آپ آفرز آ رہی ہیں؟ میری بات چیت چلی ہے، 4-5 جگہ سے میری بات چیت چلی ہے، لیکن ابھی تک کہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری کوئی پایا تکمیل تک پہنچی ہے کوئی چیز، اور میں سچی بات ہے کہ میں وہ چیز سامنے سب کو نظر آئے، وہ چاند چڑھے گا تو سب دیکھیں گے، کیا اسم کا جو محاورہ ہوتا ہے نا، سب دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی بہت کوشش ہے۔ اچھا پھر عائشہ سوری ٹو کٹ یو آف، ہمیں کال لینی ہے، ویٹ کریں۔ احمد طاہر ہے نوٹنگہم سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے اور میں عائشہ ثنا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں آپ کے شو میں آیا تھا جو سنگر ٹی وی پہ۔ اوکے، دیٹس رائٹ، واٹ اے اسمال ورلڈ۔ اور میرا بڑا دل چاہتا ہے یونیورسٹی آف ناٹنگہم دیکھنے کو۔ جی جی ضرور آئیے گا۔ اور کیسے ہیں آپ، کیسا چل رہا ہے آپ کا میوزک کریئر وغیرہ؟ بالکل بہت اچھا ہے، لیکن میں ادھر ایک بات کچھ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہوسٹنگ میں ایک بہت بڑا نام عائشہ ثنا جو کہ ہم نے اپلوڈ کر دیا۔ آئی ڈونٹ نو کن وجوہات کی بنا پر کی تھی، تو آپ بہت اچھا شو ہوسٹ کرتی تھی، ماشاء اللہ اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن اس کی وجہ ہی جاننا چاہیں گے اس کو چھوڑا کس وجہ سے آیا کہ یوسف نہیں، مطلب کہ وہ شو کو بند کروایا تھا؟ اور دوسری ابھی آپ کی نیوز چلی تھی آپ کے بیٹے کی، پھر آپ نے ڈائیورس کے وہ جو ہو رہا ہے کہ وہ بیٹا وہ یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مطلب کہ مجھے ملنا چاہیے یہ جو، تو because Yusuf did not want anybody to find out that I was expecting. You see وہ اچھا یہ بھی کچھ مسکنسیپشنز ہیں، میں بتاتی ہوں کہ ایک ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں، بہت نامور ہمارے صحافی ہیں، انہوں نے لکھا جی عائشہ ثنا تو مارننگ شو میں سیاہ سفید کی مالک تھی، تو وہ تو سیٹ اکھڑوا دیتی تھی، تو وہ تو یہ کر دیتی تھی، وہ تو یوں سر پہ ناچتی تھی، سب کے ایسے کرتی تھی ویسے کرتی تھی۔ تو دیکھیں میں تو بڑا پروفیشنلی اپنا کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ساری ایلیگیشنز میرے پہ لگائی ہیں تو ان کا میرے اس سارے کیس سے اس سے کیا تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جواب آپ کسی اور فورم پہ لیں۔ تو وہ میں بڑا پروفیشنلی کام کرتی تھی، اور میں نے جب شو سٹارٹ کیا تھا تو مینیجنگ ڈائریکٹر محمد ارشد خان صاحب تھے۔ یوسف بیگ مرزا صاحب جب سیکنڈ ٹائم ایم ڈی بن کے آئے پی ٹی وی کے، تو کراچی سے میں پروگرام کرتی تھی، انہوں نے مجھے فائر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ابھی میں اپنا مارننگ شو کر رہی تھی 2009 سے ارشد خان صاحب ہی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اور یہ یوسف بیگ مرزا صاحب جب دوبارہ آئے تھرڈ ٹائم پی ٹی وی کے ایم ڈی بن کے، تو بڑا پروفیشنلی ہم کام کر رہے تھے، کوئی میں ان سے کوئی فائدے نہیں لے رہی تھی، جو جیسے کام ہوتا ہے ویسے ہی کام ہو رہا تھا۔ اینڈ وین آئی واز ایکسپیکٹنگ ہی ڈidn't want anybody to find out، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ غائب ہو جائیں یہاں سے، پروگرام چھوڑ دیں، آؤٹ آف سین ہو جائیں آپ، اور جب آپ واپس آئیں گے آپ کا پروگرام آپ کو واپس کر دیا جائے گا، اور یہ جو بھی کانٹریکٹ اور جو کچھ بھی بن رہا ہے فارمیلٹی ہے۔ تو طاہر صاحب یہ اس کا جواب ہے کہ کس طرح سے میں گئی۔ شو میں نے کیا 1 اگست تک، اس کے بعد مجھے پچھلے سال 2011 کے مجھے اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ جی رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو گئی، اب آپ جائیں اور پھر آپ آئیں گی، آپ کا شو آپ کو واپس مل جائے گا۔ تو اوکے جی، تھینک یو سو مچ عائشہ، آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی، آپ کی جو آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمارے ویورز نے دیکھا جانا، اینالائز کریں گے یہ خود، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، آپ کے اس مسئلے میں آپ کو مدد ملے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آور شو۔ مل سکتا ہے کہ میں ایک جی ضرور، اگر آپ، کیونکہ یہ باتیں ایک بہت ایک کیریکٹر اساسینیشن کیمپین جو ہے نا وہ ایک چلائی جا رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے آئی ڈونٹ owe this to myself, I owe it to my son.
मेरे 2 बेटे माशाल्लाह से अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे। तो ये कहानी निकल रही है कि जी ये ब्लैकमेल कर रही है, पैसे मांग रही है, पता नहीं कोई 1.5 करोड़ की बात करता है तो कोई 30 करोड़ की करता है तो कोई 15 करोड़ की करता है। तो मैं भाई कौन से पैसे मांग रही हूँ? मेरा तो कोर्ट में केस चल रहा है और मेंटेनेंस का केस चल रहा है। जब इस एक बंदे ने इकरार किया है कि 2012 तक मैं उसकी बीवी हूँ, तो 2006 के बाद से मेरी मेंटेनेंस दे, वो अपने बच्चे की मेंटेनेंस दे। मैं पेपर्स दिखा चुकी हुई हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में जो हमारा एक प्रॉपर्टी का केस था, उसमें पता नहीं कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी के एवज इस बंदे ने मुझे सिर्फ 45 लाख रुपए देके कि जी ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो दे दिए। और मैंने कहा कि अच्छा जी हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमारा एक मामला संभल रहा है, सॉर्ट आउट हो रहा है, तो मैंने भी हामी भर ली। वो जी एक होस्ट है जो ट्विटर पे लिख रही है कि आयशा सना ने तो जी पिछले साल 70 करोड़ लिए हैं, उनको पता है नहीं, उनके ठीक है नहीं, पता नहीं वो क्या ट्विटर पे ट्वीट करी जा रही है। बिल्कुल। हाँ। आयशा, अब क्योंकि हमारे जो फर्स्ट आवर का जो टाइम था वो अपने ختام को मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे आप लोगों ने ये डीएम डिजिटल ने मुझे ये मौका दिया। इसके साथ ही हमें जाना है, बिल्कुल इसके साथ ही जाना है, हम एक छोटे से ब्रेक पे वापस आएंगे, हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। दूसरे बहुत बड़ा इम्तहान है और सोच नहीं आ कोई भी कि क्यों इम्तहान हम पे आए। बिल्कुल सही। क्या वजह है, कौन सी तकलीफें हैं? हर लड़की कहने के साथ तकलीफें आती हैं, वो ना समझने वाले लोगों को पे आती हैं और समझ जाने वालों को खुदा हदायत दे देता है और समझ आ जाती है तो खुदा उस वतन को, उस मुल्क को, दुनिया को बचा लेता है। बिल्कुल। तो वहाँ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये तो मैं आपका काम कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नहीं, हमारे साथ ना दूसरी दफा ऐसा हो रहा है। एक दफा मैंने शादी हमने कहा था उठा शादी उठा वहाँ बैठते हैं और वहाँ हमारे गेस्ट को हम यहाँ बिठा देते हैं। सॉरी, वो हमारे पास डॉली आई थी। डॉली, अच्छा, हाँ, she was a beautician। तो वो ब्यूटिशियन थी। अच्छा आयशा, अगर हम आप पर्सनल लाइफ को कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हम चाहते होते हैं कि हम हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाने। हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें कॉल करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। तो आयशा, मतलब शादी हो गई है आपकी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी शादी हुई होगी, क्योंकि आप लगती नहीं है। लो क्या? अच्छा नहीं, कसम से आपकी फिटनेस माशाल्लाह कोई देख ही नहीं कह सकता कि अभी आप। अल्लाह करे कोई फिटनेस आ रही हो स्क्रीन पे भी। प्लीज कैमरामैन से मेरी बहुत इल्तिजा है कि जरा लेंस चेंज कर लें। अच्छा नहीं जी सादिया, आप पूछें जरूर। हाँ, मैं पूछना चाहूंगी, शादी हो चुकी है आपकी? जी बिल्कुल, मेरी शादी हो चुकी हुई है। शादी मेरी हुई थी 21 जून 2003 को। ठीक है, मेरी दूसरी शादी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, आहद तारिक ख्वाजा मेरे बेटे का नाम है। इंशाल्लाह ताला कल मेरा बेटा 18 इयर्स का हो जाएगा। और जी, और पैदा भी मेरा बेटा लंदन में ही हुआ था बाय चांस, क्योंकि उस वक्त हम लोग लंदन में रह रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा सिलसिला था। तो एनीवे वो शादी खत्म हो गई और बाद ये मेरी शादी हुई 21 जून 2003 को। ठीक है, और वो शादी भी अब बिल्कुल खत्म होने वाली है, बल्कि जी बिल्कुल खत्म होने वाली है। और 8 अगस्त को वो शादी, आई थिंक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। तो इस हवाले से भी कुछ मिसकंसेप्शंस थी कि जैसे जी मेरी जो तलाक है वो कोई पता नहीं 5 साल पहले हो चुकी हुई है, कुछ ऐसा भी था। अब ये देखें, ये बड़ी लंबी कहानियां हैं। और जो चाहने वाले होते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको सब पता है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं छुपाया। माई लाइफ इज एन ओपन बुक। और बल्कि ये मिसकंसेप्शंस है, और आपको पता है ना, परसेप्शंस रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, इल्यूजन्स बन जाती हैं, उनको बनाने वाले बहुत बड़े प्लानर्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बन जाता है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फैन हैं, उनको है इन सारी बातों का। और मैं बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर www.yusufbegmirza.com पे जाएं, ये एक वेबसाइट है मैंने लॉन्च की है अभी कुछ दिनों पहले, तो उनको सारी कहानी पता चल जाएगी। और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसपे माशाल्लाह से मतलब 120 मीडिया के लोग आए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग YouTube पे जाएं और आप लोग टाइप करें आयशा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज वो देखें। बिल्कुल। तो इसलिए वो कैसा रिस्पांस कैसा था आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? भाई क्या है आपके स्टूडियो में, मेरा गला हो रहा है। अच्छा सॉरी, ये इस तरह की तो हमारी चलती रहेगी नोक झोंक बीच में। रिस्पांस ऐसा था शामा कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि मेरे खिलाफ एक मीडिया कैंपेन जो है ना वो पहले से, एक हफ्ता पहले से शुरू हो गई थी। जब पता चला ना मिर्जा साहब को कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, उन्होंने अपने तमाम हथकंडे, अपना तमाम इन्फ्लुएंस, अपना तमाम वो दबदबा, अपना जोर, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, सब चीजों को ना मतलब तक में डाल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है भाई, बरूए कार, बड़ी अच्छी उर्दू भाई शाज़मा की। एनीवे जी, उसके बाद एक चैनल पर पहले से ही मेरे खिलाफ खबरें आनी शुरू हो गई कि जी बढ़ती उम्र है तो डिप्रेशन का शिकार है, तो काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं पता नहीं कोई साइको हो गई हूँ, हाँ, जैसे मैं कोई साइको हो गई हूँ, तो मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी लोग आए तो वो सोचें कि ये बुड्ढी माई जो है क्या बोल रही है, यू नो, ऐसा कुछ इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। अच्छा जी, सब लोग आए, सब लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, एक एक डॉक्यूमेंट जो मेरे निकाह नामे, मेरे तलाक नामे, मेरे बेटे का डीएनए सर्टिफिकेट, डीएनए टेस्ट भी करवा दिया। जी बिल्कुल, डीएनए टेस्ट, सारा उसके रिजल्ट्स, सारे उसके बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर ये जो मिर्जा साहब हैं, इनकी जो पहले जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, जिनको उन्होंने तलाक दी हुई थी मुझसे शादी करने से पहले, और मेरे निकाह नामे में नहीं लिखा हुआ है कि उनकी कोई वाइफ नहीं है। साथ सारा उनका जो तलाक का एक पूरा प्रोसेस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो देखे ना मियां बीवी बन के रह रहे हैं ना सोसाइटी में। अच्छा, वैसे उनकी तलाक हुई थी और ये तलाकनामा जो है वो बाकायदा है जी, उनकी तलाक हुई, इसके बावजूद वो कैसे दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, उनकी तलाक हुई 10 मार्च 2003 को। मैंने आपको बताया कि मेरी शादी हुई 21 जून 2000 के बाद, ठीक है। अच्छा, अब जी उसके बाद वो किसी जाली फतवे के तहत या बस सोसाइटी को एक बेवकूफ बना के कि नहीं जी हम तो बस बच्चों की खातिर रह रहे हैं और पता नहीं इस मसलहत के तहत और उस मसलहत के तहत, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की सिविलाइज्ड डिवोर्सेज हों, लोग बच्चों की खातिर मिलते रहें, बच्चों की शादियों में इकट्ठे बैठें, बच्चों की ग्रेजुएशन में इकट्ठे जाएं, लेकिन आप ये पोज ना करें कि आप मियाँ बीवी हैं। ये एक चीटिंग है बिल्कुल, कि जी आप अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस पोज कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि जिनका सबको पता है कि भाई इनकी तलाक हुई हुई है, लेकिन वो लोग मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, लेकिन सब लोगों को मालूम होती है, ठीक है। सो ये सब कुछ मैंने जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सादिया, शाज़मा, ये मैंने व्यूअर्स, ये मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए ओरिजिनल, उनको सारे उस पे स्क्रीन पे भी, मल्टीमीडिया पे भी उनको सब कुछ दिखाया गया, उनको साथ सेट दिया गया ऑफ 40 डॉक्यूमेंट्स, यू नो कि ये असलियत है, ये हकायक है। पता नहीं जी मैंने कौन सी एंटी स्टेट बातें कर दी या कौन सी, अल्लाह माफ करें, एंटी इस्लाम बातें कर दी, या मैंने कौन से ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बारे में जैसे मैंने बात कर दी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग ही नहीं की गई, एक भी खबर नहीं प्रिंट हुई। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं जंग ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आशिक चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी खबर दी वर्ड बाय वर्ड, जैसे मेरी प्रेस रिलीज थी। शकील जाहिद साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शकील जाहिद साहब नई बात से, उन्होंने मेरी खबर दी। एक दो और पेपर हैं उन्होंने दी, पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने मेरी खबर दी, और मीडिया में एक्सप्रेस ने मेरा बहुत साथ दिया, और फिर ये कहानी बना दी गई कि एक्सप्रेस ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया। आप ये देखें कि ना जान ना पहचान ना कुछ, अगर कोई आ रहा है और हक का साथ दे रहा है और आके जो एक फर्ज होता है कि जी रिपोर्ट किया जाए, जो कुछ भी है रिपोर्ट किया जाए, और फिर लोग उस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करें कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो वो उन्होंने, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है तो वो जैसे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बिल्कुल आयशा, आपसे आपके इशू पे बात होगी, एक लाइव कॉलर है देर से वो। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कमिंग बैक टू योर इशू जी, मतलब आप ये देखें कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी रिपोर्ट ही नहीं किया गया, कवर ही नहीं किया गया, और मुझे फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और खैर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब यूट्यूब पे और उसको जितनी और साइट्स ने उठाया, और जो उस पर मुझे रिस्पॉन्स मिली है, ठीक है, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, बुरे कमेंट्स भी होते हैं। मैं ये नहीं करूंगी कि जी मैं कोई बेचारी बनने की कोशिश करूं और कोई बुरे कमेंट्स जो हैं उनको मैं कोई ब्लॉक करा दूं। हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, यू हैव अ राइट टू योर ओपिनियन। लेकिन आप देखें, मेरी ये सबसे गुजारिश है, मेरी सबसे अपील है कि आप हक का साथ दें। बिल्कुल प्लीज, आप लोग जो मेरी सारे बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं, बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं,
अगेन मैं उनका नाम लेना शुरू करूंगी तो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। प्लीज मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग इसको खुद एनालाइज करें, खुद आप देखें कि इशू क्या है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर ये कह रही हूँ कि मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा 8 महीने का है, वो बच्चा अपने लिए तो नहीं बोल सकता ना। आई हैव टू स्टैंड अप फॉर हिज राइट्स। और जो ये मिर्जा साहब की फैमिली है, आप लोग अगर वेबसाइट पे देखें जो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक्स किए हैं, भाई आप अपने बंदे पे अटैक करें। हैं उसमें या कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं उसमें कि नहीं पर्सनल जिंदगी में नहीं आयशा, होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन पे खुश नजर आते हैं, लेकिन खुश नजर आते हैं, हर एक के लिए हर दिल अजीज होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा, मैं ये वही वाली बात मॉर्निंग शो वाली आ गई कि गला आज ठीक है या नहीं है, लेकिन व्यूअर्स मेरी आवाज से भी यूज टू हो चुके हैं मैं। अच्छा जी, ऐसे सादिया के मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र हूँ, आई एम एक्चुअली अ वेरी हैप्पी पर्सन। और आई थिंक ये मुझे एक ये जो इनहेरिट किया है मैंने अपनी अम्मी से, ठीक है, कुछ हो जाए वो बहुत खुश रहती है। मुझसे ये यास्मीन ताहिर साहिबा जो हैं वो मुझे पूछती हैं, भाई तुम हर वक्त इतनी वाइब्रेंट, इतनी एक्सुबरेंट, इतनी खुश कैसे रहती हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मसले मसाइल बहुत होते हैं, लेकिन मैं उन मसले मसाइल में से सेल थ्रू कर जाती हूँ। अल्लाह ताला कोई आजमाइश में इंसान को डालते हैं तो आपको वो ताकत भी देते हैं, आपको वो हिम्मत भी देते हैं कि आप उसमें से गुजर जाएं। और दूसरी बात ये कि अपनी अब पानी भी नहीं पी सकते रोजे में, हाँ तो ऐसा है कि जो कुछ भी होता है, जो भी हाइज लोज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। आपने गलत किया या आपने सही किया, ये अब आप पे ही है, ठीक है। हाँ, मैं तो मानती हूँ भाई कि मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, ठीक है, लेकिन अब ये मेरी चॉइस है, ठीक है, मुझसे कोई बुलेट पॉइंट पे कुछ नहीं करा रहा। हाँ, मैं उन वीक लोगों की तरह नहीं हूँ जो कहें हाय हम बेचारे, तो हमारे को उसने ये कर दिया, तो हमारे साथ उसने वो कर दिया, उसने हमसे ये जबरदस्ती कर लिया, तो वो कर लिया, तो ये कर लिया। हाँ, और रिग्रेट्स, अल्लाह का शुक्र है मुझे एक रिग्रेट नहीं है। और आजकल तो मैं वैसे ही माशाल्लाह से आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरा बेटा है माशाल्लाह से, ही इज टर्निंग 18, आहद जो मेरा बेटा है। और यू नो आई कुड नेवर एवर थिंक कि मेरे साथ एक ये मिरेकल होगा मेरी पर्सनल लाइफ में। ये मैं व्यूअर्स के साथ कर रही हूँ पहली दफा कि मतलब मेरा अब एक माशाल्लाह 8 महीने का मेरा एक और बेटा है, मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा मेरे बेटे का नाम है। एंड यू नो आई एम जस्ट एंजॉयिंग मदरहुड सो मच, क्योंकि आप जब 21 के होते हैं, आपको पड़ी होती है ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, और फिर आप जब 39 के होते हैं तो फिर आप काफी कुछ कर चुके हो, तब आप कहते हैं कि अच्छा बस अब मैं बच्चे को एंजॉय करूं, मुझे इधर उधर घूमने फिरने का इतना कोई शौक नहीं है। क्या सब कुछ कर लिया या कुछ बाकी भी ख्वाहिशें पूरी हो गई? नहीं, अभी बड़ा कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ नहीं कर लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, और जो करने का दिल था, जो करने के प्लान्स थे, वो अल्लाह ताला ने मौका दिया है बहुत अच्छी तरह से करने का। और वैसे मैंने कोई इतनी प्लानिंग भी नहीं की, बस खुद ही से होता रहा सब कुछ, सही खुद ही से होता रहा। और गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, कुछ क्वालिटीज और कुछ हमारे अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। ऐसा ही आयशा सना के साथ है। खैर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अजान का वक्त हुआ चाहता है पाकिस्तान में, जोहर की अजान का, तो उसके लिए हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। मैनचेस्टर सवेरे मैनचेस्टर सवेरे सवेरे प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम ओवरसीज पाकिस्तान में भी हैं, हम उनको स्पेशली मुतवज्जो करना चाहते हैं, और कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, खास तौर पे ऐसे जो हमारे त्योहार होते हैं उनका, तो उनका सोच के डिजाइन करते हैं। अच्छा सना, मुझे ये बताओ बेटा, आप यहाँ कब आ रही हो, इधर का डीएनपी का प्रोग्राम भी कर रही हो? सब प्रोग्राम बना के फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम आपको बताते हैं। आपकी दरखास्त करनी पड़ेगी जी, हम दरखास्त कर देंगे डॉक्टर साहब से। हमारे चैनल के ऑनर है, वो कह रही हैं कि उनसे दरखास्त करेंगे कि आपको यहाँ पे हाई कर लें। मिसेस खान, आप चाहती हैं कि मैं और सादिया हमारी कुर्सी हम छोड़ दें? हमें चाहती हैं आप क्यों कर रही हैं? आप तीनों भी हो जाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेहमान कोई नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मिसेस खान। क्या मैं और लोगों को भी मौका देती हूँ, आप बात करो, लेकिन मैं ये कहूँगी आप ना क्या आशा अब बहुत दुआ करें, हमारे हालात जो है
पाकिस्तान के वो खुदा की करे और इस्तग़फ़ार करने की बहुत बिल्कुल सर। 2012 को मुझे जो पहला डिवोर्स पेपर मिला तो उसमें फखर हमीद साहब जो कि पीटीवी के डायरेक्टर आईटी हैं या कुछ इस किस्म का ओहदा है उनका वो गवाह बने हुए थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब कोई फैमिली मेंबर, एक फैमिली मैटर में कोई फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार या कोई वो गवाह नहीं, पीटीवी के लोग गवाह बने हुए तलाकनामे में, ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आगे क्या कुछ जो है किस तरह से किया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने जो देखी, डिसऑन कर रहे हैं वो अपने ही बेटे को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जी जी, डिवोर्स भी दे रहे हैं, क्या जिस ले रहे हैं बेटे की बड़ी चाहत की है उन्होंने। हाँ। अगर आप तमाम उनके मैसेजेस पढ़ें प्लीज, हाँ। मेरी अगेन गुजारिश है ये जो लोग देख रहे हैं कि अगर आप www.yusufbegmirza.com पे जाएं तो आपको तमाम माजरा जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ उन्होंने डिवोर्स देके ये साबित कर दिया कि आपके साथ उनकी शादी रही है टिल डेट, और उसके बावजूद वो डिसऑन कैसे कर रहे हैं आपने? बस जी वो इस तरह से डिसऑन कर रहे हैं कि उनकी जो ये सो कॉल्ड बेगम है जमीला मकसूद और उनकी जो बेटी है सना बेग मिर्जा, उन्होंने ये ठान ली है, उन्होंने ये मिशन बना लिया अपना जिंदगी में कि जी हमने इस बच्चे को पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने देंगे। आप ये देखें ना सादिया, अगर वो मुझे ऑन करते हैं, बच्चे को ऑन करते हैं, तो ये जो वो पिछला एक फेक फसाड बना के रहे हैं इतना अरसा, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सही, ठीक। सो बस वो एक चीज उनको सूट करती है, उस परसेप्शन को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि किसी को आप पर्सनली डैमेज करें, साथ आप उसको प्रोफेशनली डैमेज करें, अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके ये लोगों को हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करना, ये एडवर्टाइजमेंट्स का बार्टर करना, ये लोगों को बहुत सब बाग दिखाना कि जी तुम आयशा को डैमेज करो, आयशा को मीडिया में ना आने दो, इसको कोई प्रोग्राम ना मिल जाए, ये कोई काम ना कर ले, ठीक है। मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी आपको ऑफर्स आ रही हैं? मेरी बातचीत चली है, 4-5 जगह से मेरी बातचीत चली है, लेकिन अभी तक कहीं मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी कोई पाया तकमील तक पहुंची है कोई चीज़। और मैं सच्ची बात है कि मैं वो चीज़ सामने सबको नजर आए, वो चांद चढ़ेगा तो सब देखेंगे, क्या इस्म का जो मुहावरा होता है ना, सब देखते हैं, लेकिन वो भी इनकी बहुत कोशिश है। अच्छा, फिर आयशा, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमें कॉल लेनी है, वेट करें। अहमद ताहिर है नोटिंगम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और मैं आयशा सना से बात करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको शायद याद होगा कि मैं आपके शो में आया था एज अ सिंगर टीवी पे। ओके, दैट्स राइट, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। और मेरा बड़ा दिल चाहता है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम देखने को। जी जरूर आइएगा। और कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका म्यूजिक करियर वगैरह? बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन मैं इधर एक बात कुछ करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में होस्टिंग में एक बहुत बड़ा नाम आयशा सना, जो कि हमने अपलोड कर दिया। आई डोंट नो किन वजूहात की बिना पर पीटीवी तो आप बहुत अच्छा शो होस्ट करती थी, माशाल्लाह उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसकी वजह ही जानना चाहेंगे, उसको छोड़ा किस वजह से आया कि यूसुफ नहीं, मतलब कि वो शो को बंद करवाया था। और दूसरी अभी आपकी न्यूज चली थी आपके बेटे की, मतलब फिर आपने डाइवोर्स वो जो हो रहा है कि वो बेटा वो यूसुफ कह रहे हैं कि नहीं वो मतलब के मुझे मिलना चाहिए जो, तो because Yusuf did not want anybody to find out that I was expecting. You see वो अच्छा, ये भी कुछ मिसकंसेप्शंस है, मैं बताती हूँ कि एक हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत नामवर हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा जी आयशा सना तो मॉर्निंग शो में स्याह सफ़ेद की मालिक थी, तो वो तो सेट उखड़वा देती थी, तो वो तो ये कर देती थी, वो तो यूं सर पे नाचती थी, सबके ऐसे करती थी वैसे करती थी। तो देखिए मैं तो बड़ा प्रोफेशनली अपना काम करती थी, ठीक है। और आपने जो सारी एलिगेशंस मेरे पे लगाई हैं तो उनका मेरे इस सारे केस से इससे क्या ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। उसका मतलब जवाब आप किसी और फोरम पे लें। तो वो मैं बड़ा प्रोफेशनली काम करती थी। और मैंने जब शो स्टार्ट किया था तो मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अर्श खान साहब थे, यूसुफ बेग मिर्जा साहब, ठीक है। और आप लोग एक बच्चे को बाप की शफकत से महरूम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने एंगल्स और अपने एजेंडाज और अपने मोटिव्स की वजह से, ठीक है, जबकि आप खुद गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और खुद आपका क्या कैरेक्टर और क्या सब कुछ है, आप मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, साथ मेरे बच्चे पे उंगलियां उठा रहे हैं।
تو آپ لوگ تو خود اپنے سر بہت سا گناہ لے رہے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ شمیم ہے عائشہ اچھا. برمنگھم سے. اوہ اچھا شمیم برمنگھم. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم شمیم کیسی ہیں آپ؟ میرے خیال سے کوئی پرابلم ہے. اوئے ہوئے یہ کیسا سائرن بجا. لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا یہ مجھے پھر وہی یاد آ جاتا ہے نا جب میں بھی کہتی ہیلو ہیلو جی آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. اور کبھی جب یہ اوورسیز کال آ رہی ہوتی تھی تو بہت ہوتا تھا کہ بھائی بات کر لیں انٹرنیشنل کالرز سے. انٹرنیشنل کالر. اور ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اتنی کالز آتی ہیں مانچسٹر سویرے کی ویورشپ بہت زیادہ اچھی ہے. اچھا عائشہ جہاں تک ہم بات کریں گے آپ نے اینکرنگ کی, اس کے علاوہ بہت لنکس آپ نے بھی بنائے ہوں گے. اگر یوسف بیگ مرزا صاحب کے لنکس تھے, آپ کے بھی لنکس ہوں گے. کیا کسی نے کوئی کام نہیں کیا, کیا کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا؟ میں اس پہ بات کرتی ہوں لیکن ایک کال لے لوں. میں گربچن ہے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے. گربچن اچھا اچھا جی السلام علیکم گربچن کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی السلام علیکم. کوئی نہیں بڑی ٹف لائف ہوتی ہے. جدو ٹف لائف آئے نا تو رب امتحان لینا تو بندہ کوئی سکسیسفل ہو کے بڑا کامیاب ہوتا ہے. دیکھو انہوں نے حوصلہ نہیں چڑیا. دس از دا بیسٹ تھنگ ان لائف. دیکھو مصیبت آن جہاں فیس کر کے مجھے تو ایویں ہے نا سارے مینو ریئلی بڑا سے میں مینچسٹر سے بول رہا جتنے مینچسٹر والے دل والے بندے رہتے ہیں. بڑا دن بڑی خوشی ہوئی ہے. باقی سانو کدے بھی کسی چیز کی لوڑ ہوئے مدد ہوئے آر ملے ہے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. مینچسٹر سے ویری ہیپی ٹو نو سارے ہندوستانی نا بندے لیڈی کی عزت کر کے راضی نے. گلا ضرور کریں گے لیڈی عزت کرنے, جی باہر جا کے گال کھن گے تو ماں بہن کی گال کھن گے. دیکھو تھی عزت کافی کی لیڈیز کی جی تھی گال جا کے باہر وہی کرنی ہے. ون شوڈ رسپیکٹ. کوئی ایک لیڈی سے آتی نا سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سامنے کبھی اچا نہیں بولتے, لیکن سارے ہندوستان یا پاکستان بس انہوں نے تھلے دبا کے رکھے ہے. تو میں بڑے خوشی ہوں کہ انہیں آپ سر کھڑیا. شی از ڈوئنگ ویری ویل اینڈ وی وش all the best all the way all the time. Thank you so much. Thank you so much. بہت بہت کال کرنے کا. ہمارے ریگولر کالر ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے ان لوگوں سے بات کر کے. سعدیہ آپ جو بات کر رہی تھی نا, دیکھیں آئی ایم اے ویری فورتھ کمنگ پرسن. میں نے کبھی کسی سے اس لیے اپنا میل جول رکھا نہیں, میل جول نہیں بڑھایا کہ میں نے اس کو کل کو استعمال کرنا ہے. مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس لیے کوئی لنکس کانٹیکٹس پی آر نہیں بنائی. میرا یہ کہ بھائی سب سے اچھی طرح ملو. آپ کسی کو اچھا اخلاق ہی دے سکتے ہیں نا, اور سب کے پاس سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. پلس آئی ایم این انڈیویجول. آپ دیکھیں جو یہ مرزا صاحب کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کی پاورز کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آرگنائزیشن جو ان کو وراثت میں نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے, ان کی انہیریٹنس نہیں ہے. اٹ از اے اسٹیٹ اون چینل. اس کی مشینری کو, اس کے ریسورسز کو, اس کے انفراسٹرکچر کو یہ استعمال کر رہے ہیں اپنی پرسنل وار کے لیے یا اپنے پرسنل مقاصد کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عائشہ سوری ٹو کٹ یو, شمیم ہمارے ساتھ دوبارہ واپس آ گئے ہیں. شمیم ہے جی برمنگھم سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شمیم کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو روزے مبارک. خیر کیسے جا رہے ہیں آپ؟ روزے سے جا رہے ہیں؟ فٹ. آپ ٹھیک ہیں شمیم؟ میں نے ایک ہی بات کرنی تھی, بس ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا, یہ آپ فیشن کر کے بیٹھے ہیں ایسی طرح, اچھی بات نہیں ہے نا. طرح طرح کے مرد دیکھ رہے ہیں آپ کو. شمیم تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. شاید کوئی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ سے بات کر. ہم لوگ تو ٹھیک کپڑے نہیں, آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے جہاں پہ. اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کیے جا رہے ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو مجھے ڈیورس پیپرز ملے 5 مئی